امریکہ کے ساتھ ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ پاکستان بہت جلد امریکہ سے تجارتی معاہدہ چاہتا ہے۔ امید ہے ہفتوں نہیں بلکہ دنوں میں ڈیل ہو جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب، کہا پاکستان امریکہ کی منڈیوں تک مؤثر رسائی چاہتا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کو کان کنی کے شعبے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مارکو روبیو سے ملاقات میں باہمی شراکت داری پر زور دیا۔ پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ بھارت کے خطے میں تسلسل اور بالادستی کی کوششیں 7 سے 10 مئی کے دوران دفن ہو گئیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے۔ امریکی تھنک ٹینک سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے، بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم کو چھوڑنا ہوگا۔ بھارت کے خلاف دفاع میں کارروائی کی۔ امریکہ نے پاک بھارت سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ کسی نیوٹرل مقام پر بات چیت کا منتظر ہے۔ خطہ دشمنی نہیں، تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چل سکتا ہے۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ بیت المقدس آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات بگاڑنا نہیں ہے۔ پاکستان سیاسی گروپنگ یا کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور منظم روابط سے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا پھر اعتراف، کہا پاک امریکہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاک بھارت کشیدگی کے دوران امریکی صدر کا کردار لائق تحسین تھا۔ علاقائی امن کے لیے دونوں ملکوں کے نقطۂ نظر اور مفادات میں ہم آہنگی ہے۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا دو طرفہ تعلقات کے مکمل اسپیکٹرم پر جامع بات چیت کے لیے امریکی ہم منصب سے مل کر خوشی ہوئی۔ مارکو روبیو نے امریکہ ایران تنازع میں ثالثی اور علاقائی استحکام کی پاکستانی خواہش کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار سے ملاقات میں مارکو روبیو نے دو طرفہ تجارت باہمی مفاد میں بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ معدنیات اور کان کنی میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹم بروس کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی خصوصاً داعش کے خلاف تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی نائب صدر ہان زینگ سے ملاقات۔ وزیر خارجہ وانگ جی سے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر ملے۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے پاک افواج کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں پاک چین آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کی ازسر نو توثیق کی گئی۔ مشترکہ جیو پولیٹیکل چیلنجز، سی پیک، علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چن سے سے بھی ملاقات ہوئی۔ چین کی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین، سیاسی کمشنر اور چیف آف سٹاف بھی ملے۔ پیپلز لبریشن آرمی ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے پاکستانی عزم کا بھی اعادہ۔ Too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. Are you done? And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. They really they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages, and they know what happens after you get the final hostages. And basically, because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out, and they're going to have to fight, and they're going to have to clean it up. You're going to have to get rid of it.
हमास रहनुमा जंग बंदी पर राजी नहीं, वो मरना चाहते हैं और इसका वक्त आ गया। सदर ट्रंप की फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार तंजीम हमास को धमकी, कहा हमास को पता है कि जब आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा। मैं समझता हूँ कि हमास के रहनुमा अब शिकार किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है गजा से यरगमालियों की रिहाई और हमास के खात्मे के लिए अमरीका से मिलकर दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। उधर गजा में इसराइली हमले जारी, इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत मज़ीद 80 शहीद, 470 ज़ख्मी। गजा में ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 9 अमवात, मजमूई तादाद 122 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फ्रांसीसी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा मैक्रोन का बयान गैर मुतवाज़न है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा वो इस बारे में वाज़ेह नहीं, लेकिन ये बयान वसी मनसूबे का हिस्सा होना चाहिए जिसका नतीजा 2 रियासती हल और फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के लिए देर पा सलामती की सूरत में निकलना चाहिए। बरतानिया के 125 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को ख़त, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर। ईरान के शहर ज़ादेहान में अदालती कंपाउंड पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में मुतादिद अफराद के जाँ बाक होने की इत्तलात। हमलावर जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में सैलाब से बंद रास्ते 6 रोज़ बाद भी खुल न सके। पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। लैंड स्लाइडिंग और रैली में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सैलाब से मुतासरा दियामर के इलाकों का दौरा। हाजी गुलबर खान, ठकनियाट, कन्नर और थूर में गए। आफत ज़दा करार दे दिया गया। सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ, खैमे और इमदादी सामान फराहम करने का हुक्म। गिलगित में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस, तमाम नालों से तजावुज़ात ख़त्म करने का फैसला। थोर मनियार में लैंड स्लाइडिंग के बायस शराय कराकरम आर्जी तौर पर बंद। बटोगाह में दोबारा सैलाबी सूरत हाल, पानी ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल हो गया। चल्लास रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस ब्लॉक, फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। मकामी नौजवान से गाहों को मुतासरा मकामात पैदल अबूर करा रहे हैं। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश और ग्लेशियर फटने से दरिया चित्राल में पानी की सतह बुलंद। दरवेश के मकाम पर बरसाती नाले में तुगयानी। चित्राल, पेशावर, शाहरा बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, सयाह और मुसाफिर फंस गए। बालाकोट और वादी नीलम में क्लाउड ब्रस्ट। बालाकोट में कंटोरा नाले के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। झील सैफुल मलूक रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सेक्रेटरी सियाहत KP के मुताबिक नारान में 500 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। लाहौर, कसूर और कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कल से 31 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से नया अलर्ट जारी। मानसून हवाएं कम शिद्दत के साथ मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में दाखिल। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद इस्माइल सैलाब मुतासरीन से उलझ पड़े। गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग को धक्का दे मारा। घांचे में मकीन दरिया कटाव से बचाव के लिए हिफाजती बंद बना रहे थे। सूबाई वजीर खजाना की गाड़ी पहुंची तो लोगों ने रोक लिया। वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान ने शहरियों को खरी खरी सुना दी और कहा पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्कीम रखी थी। इलाका अब भी महफूज नहीं तो भाड़ में जाओ। मानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। अगस्त 2014 के धरने से माशी नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल से खिताब। PTI क़यादत के खिलाफ मुक़दमात से लाताल्लुकी का इज़हार। कहा साल 9 मई पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। कोई पॉपुलर लीडर है तो उसे कोई हक हासिल नहीं कि सिक्योरिटी तनसीबात पर हमला करे। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया। बाद में आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले, 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए, सरहदें खोली, 30-40 हज़ार तालिबान अंदर आ गए।
सियासी जमात को साइड लाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शुगन नहीं। पीटीआई सियासत में इंतशार पसंद करती है, ना पार्टी में इसकी कोई जगह है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं जमहूरियत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, पीटीआई की तहरीक से कोई खौफ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। मिसाली गाँव में 24 घंटे वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ और पुख्ता सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क्स, शजरकारी भी होगी। पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को मुफ्त घर बना कर दिए। 21 लाख घर बनाने का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध को घर बनाने का टास्क दे दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का टंडू जाम में खिताब कहा सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से घर बनाने के लिए बात की। सेहत के शोबे में पीपल्स पार्टी ने जो काम किया पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। बैरिस्टर सैफ की सरबराही में उलमा, स्कॉलर्स और सियासतदानों का वफ्द काशगर पहुँच गया। वफ्द की मजहबी रहनुमाओं और स्कॉलर्स से मुलाकातें, काशगर पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने 500 साल पुरानी ईदगाह मस्जिद का दौरा भी किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा काशगर को मुस्लिम तारीख और रिवायत में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। काशगर का तर्ज तामीर मुनफरिद, तरक्की किसी उजूबे से कम नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की सिंध की जामियात के वाइस चांसलर से मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर की जामियात में मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात भरपूर जोशो जज्बे से मनाने की हिदायत। कहा मुख्तलिफ तकरीबात कराई जाएँ, तलबा तालिबात की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। मायूसी के खिलाफ शाऊर उजागर करें, मस्बत सोच को मज़ीद फ़रोग़ दें। जो रूट टेस्ट क्रिकेट की रन्स मशीन, इंग्लैंड के साबिक कप्तान टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। जो रूट ने सिर्फ 157 टेस्ट मैचेस में रिकी पॉन्टिंग के 13,378 रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो रूट की भारत के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में शानदार बैटिंग, 150 रन्स बना दिए। सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट में 15,921 रन्स बनाकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। यूनिस खान 10,000 से ज़ायद रन्स बनाने वाले पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियाई बैटर टिम डेविड का T20 में तेज तरीन निस सेंचुरी और तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड। 16 गेंदों पर निस सेंचुरी जबकि 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। टिम डेविड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे T20 में ये एजाज़ हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। अंडर 19 वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी का कारनामा। जनूबी अफ्रीका के बैटर जोरेजवन शॉलकवकी में जिम्बाब्वे के खिलाफ डबल सेंचुरी। 18 साल बैटर ने 153 गेंदों पर 215 रन की इनिंग्स खेली। 19 चौके 6 छक्के लगाए। सदर आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह। जयालों ने केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदर को मुबारकबाद। कहा सदर जरदारी तदब्बुर, हौसले और मफाहमत की अलामत हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं सदर जरदारी की क़यादत में 18वीं तरमीम मंजूर हुई। आर्टिकल 58(2)B का खात्मा हुआ। पार्लियामेंट को इख्तियारात मिले। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का भी सदर जरदारी को खराज तहसीन कहा। इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करके सदर ने जमहूरियत को मजबूत किया। शाजिया मरी की मुबारकबाद और कहा आज इस रहनुमा को खराज तहसीन जिसने ताकत
بانٹنے میں असबत समझी। सूबाई वजीर सईद गनी ने ईदी सेंटर मीठा थर में बच्चों के साथ केक काटा, कहा मुल्क की बेहतरी के लिए बच्चों की दुआओं की ज़रूरत है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? एकदम इतनी बारिश कैसे आ जाती है? बारिश गरज चमक के साथ कैसे होती है? क्लाउड बर्स्ट के ज़्यादातर वाक़यात पहाड़ी इलाकों में होते हैं। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। थाईलैंड और कम्बोडिया में 3 दिन की झड़पों के बाद सीज फायर मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम कहते हैं कि दोनों ममालिक सरहद से अपनी अफवाज को वापस बुला लेंगे, मगर कुछ वक्त लगेगा। 3 रोज़ा झड़पों में 16 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। उधर थाईलैंड में 18 सरहदी असला में मार्शल नाफिज। बरतानिया में डॉक्टर्स की तनख्वाहों में कमी के खिलाफ 5 रोज़ा हड़ताल का आगाज़। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स की शदीद नारेबाजी। बरतानवी वज़ीर सेहत ने हड़ताल को गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। और अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको की यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फायरिंग से 14 साल लड़का हलाक, 19 साल नौजवान जख्मी, मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। 400 तलबा को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।